Hello dear students, in this video lecture we will learn about lens. So it is a very important topic for 10th board examination. Okay, so the topics we will take is definition and types of lens, then terms related to lens and rules of image formation by lens. Okay, तो start करते हैं इस lecture को. So first we study a definition of a lens. Okay, so a lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. ठीक है, as you can see in this diagram, there is the two spherical surface, this one and this one. Okay, and a transparent material is bounded in between these two spherical surface. Okay, so this is called lens. Okay, now let's see what are the types of lens. So first type of lens is called convex lens. So what is a convex lens? Convex lens is a thin spherical lens whose central portion is thicker than marginal one. Okay, आप ये देख सकते हैं in this diagram there is the two spherical surface and there is a transparent material bounded in between these two surfaces, but the central portion is thicker than the edges. You can see here central portion is thicker than edges. So this type of lens is called convex lens. Okay, now convex lens can be divided into four parts. These are the four parts or types. First type is equiconvex, second type is plano-convex, third type is biconvex, and last is converging meniscus type. Okay, now what is meaning of equiconvex? Equi मतलब equal, convex मतलब those spherical convex surface are equal. You can see this spherical surface convex type, this spherical surface convex type, and both the surfaces have same radius of curvature. Okay, दोनों की जो radius of curvature है वो क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विकॉन्वेक्स. ठीक है. सेकेंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स. प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स प्लेनो मतलब दिस प्लेन सरफेस. ओके, कॉन्वेक्स मीन्स दिस स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस. ठीक है. सो एज वी नो डैट फॉर अ प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी. जो प्लेन सरफेस है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इन्फिनिटी होता है. ठीक है. और जो स्फेरिकल सरफेस है दूसरी साइड की जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया हुआ है, आर. ठीक है. तो इस तरह का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट इज अ बाय कॉन्वेक्स. बाय कॉन्वेक्स मतलब बाय मतलब both the surfaces spherical surfaces are of convex type but the radius of curvature is different for both the spherical convex surfaces. ठीक है. दोनों ही surfaces spherical convex है पर दोनों का जो radius of curvature है वो क्या है, अलग अलग है. ठीक है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बाई कॉन्वेक्स. बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है उसकी कॉन्वेक्स टाइप की है, इसलिए. नाउ लास्ट वन इज कन्वर्जिंग मेनिस्कस. कन्वर्जिंग मेनिस्कस बिकॉज ऑफ इट्स शेप. its shape is like converging meniscus. Okay, now here also you can see radius of curvature is different for both the spherical surfaces. इसके लिए R1 और इसके लिए R2. ठीक है. so these are the types of convex lens. Okay, so now let's move to the next type. So next type we have is a concave lens. Okay, concave lens में क्या होता है, a central portion is thinner than the edges. You can see here this central portion is thinner than the edges. So this type of lens is called concave lens. ठीक है. now concave lens can be divided into four parts. चार टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. अगेन इक्वी कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, बाई कॉन्केव एंड डाइवर्जिंग मेनिस्कस टाइप. इक्वी कॉन्केव अगेन इक्वल कॉन्केव. जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं कॉन्केव टाइप की वो क्या होंगी, इक्वल होंगी. यहाँ देख सकते हैं आप, दिस इज द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, दिस इज अनदर स्फेरिकल सरफेस. The radius of curvature of both the spherical concave surface is same, so that this is a equiconcave lens. ठीक है. सेकेंड है हमारे पास प्लेनो कॉन्केव. प्लेनो कॉन्केव में एक प्लेन सरफेस है और एक स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है. ठीक है. तो वही प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना है, इन्फिनिटी. और ये जो स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर. ठीक है. तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस. अनदर वन इज बाई कॉन्केव. बाई कॉन्केव मतलब बोथ द स्फेरिकल सरफेस आर कॉन्केव टाइप. ये भी कॉन्केव टाइप की और ये भी कॉन्केव टाइप की. सो बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस आर ऑफ कॉन्केव टाइप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बाई कॉन्केव. ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड इज R1 एंड दिस साइड इज R2. नाउ लास्ट वन इज डाइवर्जिंग मेनिस्कस टाइप. So diverging meniscus, because of its shape, it is diverging meniscus type. Now you can see radius of curvature of this side is R1 and radius of curvature of this side is R2.
Okay, so this is a concave lens and these are the types of concave lens. Okay, let's move. So next we will see रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह होता है ये देखते हैं हम. सो वी विल डिस्कस टू केसेस. सो फर्स्ट केस इज, पहला जो केस है वो ये है कि जो मटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है. ठीक है, तो म्यू एम तो क्या हो जाएगा, जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और म्यू एल जो है वो हो जाएगा इस लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस है इट इज़ अ डेंसर मीडियम और जो सराउंडिंग है वो क्या है, रेयर मीडियम है. ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, दिस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस. जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा बिहेव करता है एज अ कन्वर्जिंग लेंस. तो ये कैसे डिसाइड करेंगे ये कन्वर्जिंग है, तो अगर इसकी जो फाइनल रिफ्रैक्टिंग रे आ रही है, तो फाइनल इससे रिफ्रैक्शन होकर रे आ रही है, अगर वो रिफ्रैक्टिंग रे इस गोज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाती है, दिस डॉटेड लाइन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस. तो जो फाइनल रिफ्रैक्टिंग रे आती है अगर वो डाइवर्ट होती है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अपन कहेंगे कि ये लेंस जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस. अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ जाती है तो हम कहेंगे कि ये जो लेंस है वो बिहेव कर रहा है एज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट. सो यू कैन सी हियर वी टेक एनी पॉइंट एंड ड्रॉ अ नॉर्मल. कोई भी एक पॉइंट लेते हैं लेंस पर, उस पर एक नॉर्मल बना देते हैं. नॉर्मल बना दिया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी फर्स्ट सरफेस है लेंस की और ये सेकेंड सरफेस है. तो पहली वाली सरफेस पे ये इंसिडेंट रे हुई. ठीक है, नाउ दिस इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो आपका इंसिडेंट एंगल हो गया फर्स्ट सरफेस पर. नाउ आउटर मीडियम इज रेयर एंड लेंस मटेरियल इज डेंसर. ठीक है, सो जो रे आ रही है दिस रे इज कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर. रेयर से जब डेंसर में आती है तो क्या होता है, लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जो लाइट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है. सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग रे फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस. फर्स्ट सरफेस के लिए क्या हो गई आपकी रिफ्रैक्टिंग रे हो गई, और ये जो हो गया आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल हो गया क्यू. ठीक है, समझ में आ रहा है. अब ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है ये सेकंड सरफेस के लिए वर्क करेगी एज अ इंसिडेंट रे. सेकंड सरफेस के लिए ये जो रे आ रही है ये रे वर्क करेगी एज अ इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा कहाँ पर, सेकंड सरफेस पे. ठीक है, नाउ दिस इज अ डेंसर मीडियम. नाउ दिस रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. So when a light ray comes from denser to rarer, then it goes away from the normal. Okay, so it goes away from the normal. तो जैसे ही लाइट रे यहाँ रिफ्रैक्टिंग रे जो हमें मिलेगी, ये रिफ्रैक्टिंग रे क्या होगी, इस नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स इट गोज डायरेक्ट टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, इट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीन्स क्या हुआ, तो इस केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा वो कैसा बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, एक सेकेंड केस देखते हैं अपन, नेक्स्ट केस इसका. इन नेक्स्ट केस वी आर टेकिंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सराउंडिंग मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लेंस. लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ज़्यादा है. तो सराउंडिंग तो क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम, और जो लेंस है वो हो जाएगा हमारा रेयर मीडियम. ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम आगे. So now you can see this is a incident ray at first surface. जो पहली surface है उस पे incident ray है. This is a normal and this is the incident angle. ठीक है, तो अब डेंसर से जैसे ही रेयर में आएगा, तो डेंसर से रेयर में जब लाइट रे जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है इससे दूर की तरफ बैंड हो जाएगी. ठीक है, और ये Q जो है वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा पहली सरफेस से. Q इज अ रिफ्रैक्टेड एंगल फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस. ठीक है, नाउ दिस रे इज अ इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड सरफेस. जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए ये रे जो है वो वर्क करेगी एज अ इंसिडेंट रे. नाउ द लेंस मीडियम इज अ रेयर मीडियम एंड आउटर मीडियम इज अ डेंसर मीडियम. तो जैसे ही लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी, ओके, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी.
तो इफ दिस लाइट रे इज अ रिफ्रेक्टेड रे देन दिस इज द रिफ्रेक्टिंग एंगल फॉर द सेकंड सरफेस। ये जो सेकंड सरफेस है उसका ये रिफ्रेक्टिंग एंगल हो गया एस, एंड दिस रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, दूर की तरफ डायरेक्टेड होगी है। सो डेट इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो तो यही कॉन्वेक्स लेंस अब कैसे बिहेव करेगा एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द कॉनकेव लेंस। ओके, सो हियर इज अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में भी वही केस ले रहे हैं हम, अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो कम है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, ठीक है, तो जो हमारा कॉनकेव लेंस है इट बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक refractive index of lens greater than refractive index of medium. So in most of the cases a concave lens behaves as a diverging lens. Okay, let's see how the refraction take place in a concave lens. So as you can see, this is a first surface. Okay, so this is a first surface एंड दिस इज अ सेकेंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे कोई पॉइंट लिया, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा। नाउ दिस इज अ इंसिडेंट रे फॉर अ फर्स्ट सरफेस, ये इंसिडेंट रे आई हमारी। नाउ दिस इज अ नॉर्मल। ओके, सो दिस एंगल इज द इंसिडेंट एंगल फॉर द फर्स्ट सरफेस। पहली सरफेस पे जो हमारा इंसिडेंट एंगल बना वो पी बना, ठीक है। नाउ आउटर मीडियम इज रेयरर एंड इनर मीडियम इज डेंसर। तो व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर इट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये क्या होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे है फर्स्ट सरफेस से वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, ठीक है। और ये जो एंगल बना रही है क्यू, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग एंगल फॉर अ फर्स्ट सरफेस। पहली सरफेस का जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है वो कितना है, क्यू है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट बिहेव्स एज अ इंसिडेंट रे फॉर अ सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कैसा बिहेव करेगी, इंसिडेंट रे का, ठीक है। नाउ दिस इज अ नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस, ठीक है। सो दिस इज द इंसिडेंट एंगल फॉर द सेकेंड सरफेस। जो सेकेंड सरफेस है लेंस की उसके लिए जो आर है ये कैसा वर्क करेगा, एज अ इंसिडेंट एंगल, ठीक है। नाउ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ डेंसर से जब रेयरर में लाइट रे ट्रेवल करेगी तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है ये, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर अ सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ इसको क्या बोलेंगे अपन, रिफ्रेक्टिंग एंगल फॉर अ सेकेंड सरफेस, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये इट इज गोइंग और इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, ये दूर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से दिस कॉनकेव लेंस बिहेव्स एज अ डाइवर्जिंग लेंस। कब, जबकि लेंस का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा हो और मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट केस। सो दिस इज अ नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, ठीक है। तो अब जो सराउंडिंग मीडियम है वो तो डेंसर मीडियम हो जाएगा हमारा, और लेंस जो है वो वर्क करेगा एज अ रेयरर मीडियम, ठीक है। ये जब केस होता है तो जो कॉनकेव लेंस है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो दिस इज अ फर्स्ट सरफेस, और फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करा हमने, ठीक है। देन ड्रॉ अ इंसिडेंट रे, ये एक इंसिडेंट रे बनाई, ठीक है। नाउ दिस इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल पी। तो पी क्या हो गया, इसका इंसिडेंट एंगल हो गया फर्स्ट सरफेस पे। अब बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर है, अंदर का रेयरर है। तो डेंसर से जब ये रेयरर में जाएगी रे, लाइट रे जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी है, ठीक है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रिफ्रेक्टिंग रे हो गई हमारी फर्स्ट सरफेस के लिए, ये क्या हो गई, रिफ्रेक्टिंग रे हो गई, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ये रिफ्रेक्टिंग एंगल हो गया फर्स्ट सरफेस का। दिस इज अ रिफ्रेक्टिंग एंगल फॉर अ फर्स्ट सरफेस, ठीक है। नाउ दिस रिफ्रेक्टिंग रे बिहेव्स एज अ इंसिडेंट रे फॉर अ सेकेंड सरफेस। इस सेकेंड सरफेस पर ये जो रिफ्रेक्टिंग रे है वो इंसिडेंट रे की तरह वॉक करेगी, ठीक है। नाउ दिस मीडियम, इनर मीडियम विद इन अ लेंस इज अ रेयरर एंड आउटर इज डेंसर। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल।
ये क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो ये हमारी रिफ्रैक्टिंग रे है, रिफ्रैक्टेड रे का किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए। सो दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे फॉर अ second surface and this is the refracted angle. Now you can see that this refracted ray is directed towards the principal axis. Okay, you can see here that it is directed towards the principal axis. So we can say that now this concave lens is behave as a converging lens. I hope आपको समझ में आया होगा ये कि अब ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह। क्यों, क्योंकि जो ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे आ रही है हमारे पास, दिस रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Now next we'll see the terms related to lens. So there are some terms like principal axis, optical center, aperture, principal focus and focal length. Okay, so let's see one by one. So here you can see that this is a convex lens. Okay, this axis C1 C2. Okay, so this axis is called principal axis. This principal axis passing through the optical center of a lens. You can see both the diagram, दोनों ही diagram में आप देख सकते हैं जो line बनी हुई है dotted, this line is passing through the optical center of a lens. Okay, so and this line is also perpendicular to the lens axis. Lens की अगर axis बनाए हम, so this is a lens axis. Okay, so you can see that this C1 C2 line is perpendicular to the lens axis, also it is passing through the optical center, so this is called principal axis. ठीक है, now second one is optical center. तो optical center क्या होता है, it is a point within a lens from which light ray passes undeviated. ऐसा point होता है लेंस के अंदर जहाँ से कि जो लाइट रे है वो अनडेविएटेड पास हो जाती है। देखो सीधी पास हो रही है, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, सीधी पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसा जो पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अपर्चर. सो व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज अ पार्ट ऑफ अ लेंस विच इज एक्सपोज्ड फॉर द इंसिडेंट रे. ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे जो आ रही है उसके लिए जितना पार्ट ऑफ लेंस अवेलेबल होता है या एक्सपोज होता है वो उसका क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस एंड focal length. So we will see it. So here the principal focus we divide into two part. One is called first principal focus and another next one is called second principal focus. So we will see one by one. So you can see here this is a कॉन्वेक्स लेंस. ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है. नाउ व्हाट वी अज्यूम फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं, डेट अ ऑब्जेक्ट इज एट अ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, एंड द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. सो डेट पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ओके, समझ आया होगा आपको. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच object is placed such that its image will form at infinity. So in case of a convex lens, this point is called first principal focus. This f1 is called first principal focus, and as you can see this first principal focus is real one. ठीक है, because the rays are actually emerging from this point. Rays are actually emerging from this point and the image will form at infinity. ठीक है, so this is called first principal focus. और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, रियल होता है. ओके, नाउ यू कैन सी इन नेक्स्ट डायग्राम इज फॉर कॉनकेव लेंस. नाउ इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस you can see these are the rays, light rays which are coming and directed towards a point on a principal axis. Okay, these rays are coming and these rays are seems to directed towards a point on a principal axis. Now you can see that image will form at infinity. In this case the image will form at infinity and it seems like these rays, these incident rays are directed towards a point
on a principal axis. So this point is called first principal focus for a concave lens. This point is called first principal focus of a concave lens. Okay, so as you can see that this first principal focus is a virtual one in case of a concave lens. concave lens के लिए ये जो first principal focus होता है वो कैसा होता है, virtual होता है, ठीक है. So the object is virtual in this case, so and it is placed, it seems like it is placed on this point of a principal axis. Okay, so that the image will form at infinity. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ पर की ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली प्लेस्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज सीम्स टू और अज्यूम टू प्लेस इन केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस. ठीक है, सो दैट आ इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. जो इमेज जो बन रही है उसकी वो कहाँ बन रही है, पे इन्फिनिटी पे बन रही है. इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. कॉन्वेक्स के केस में ये होता है रियल और कॉन्केव के केस में ये क्या होता है, वर्चुअल होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज अ सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो फर्स्ट में हमने क्या करा था, ऐसा पॉइंट लिया था जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या ऐसा पॉइंट कॉन्केव के केस में लिया था जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ हमें इट सीम्स लाइक प्रतीत हो रहा है, और इट सीम्स लाइक इट इज प्लेस्ड ऑन अ principal axis at a point on a principal axis. ठीक है, now we see that in to find out the second principal focus we assume that the object is placed at infinity. Okay, object is placed at infinity and its image will form at a point on a principal axis and that point is called second principal focus. अब क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, और जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है जिस पॉइंट पे अब उसकी इमेज फॉर्म होगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिस पॉइंट पे अब इमेज फॉर्म होगी उसकी, उसको हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में मान लो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे हम जानते हैं जब इन्फिनिटी से आती है तो कैसी लेते हैं, उनको पैरेलल लेते हैं. तो ये लाइट रे आ रही है जो पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल आने के बाद वो क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ट, दे फोकस्ड ऑन अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होता है कि इन्फिनिटी से आ रही है लाइट रे, पैरेलल है, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आकर एक पॉइंट पर मिलेगी. जिस पॉइंट पर मिलेगी यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी. ठीक है, ये जो पॉइंट है इसी को हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस. किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए. अब जैसा आप देख रहे हैं दीज लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट. एक रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली इस पॉइंट पर आके मीट कर रही है, इसलिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो कैसा होता है, रियल होता है. किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में. ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्केव लेंस के लिए. तो कॉन्केव लेंस के लिए भी दीज रेज आर द इंसिडेंट रे, ये वाली रे और ये दीज टू रेज आर द इंसिडेंट रे. नाउ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये जो इंसिडेंट रे हैं ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी. ठीक है, अब ये आके यहाँ पर इंसिडेंट हुई कॉन्केव लेंस में. तो हम जानते हैं कि जो कॉन्केव लेंस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है. तो डाइवर्जिंग है तो ये रे क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी. ठीक है, इस तरह से ये रे डाइवर्ज होगी, तो आगे जाके तो ये रे कहीं नहीं मिलने वाली है. ठीक है, बट इफ़ यू एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, सो देन दे सीम्स टू कट ईच अदर एट अ पॉइंट दिस F2. अगर आप इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दें, बढ़ा दें, देन दे सीम्स टू कट ईच अदर एट अ पॉइंट F2. तो ये जो F2 है इसको बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्केव लेंस. ये जो F2 होगा वो क्या होगा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा. किसके लिए, कॉन्केव लेंस के लिए. ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं इस केस में जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा वो क्या होगा, रियल होगा. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कैसे निकालते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एक ऐसे पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसे पॉइंट पे हम प्लेस करते हैं ताकि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बने. ठीक है, तो इसमें तो हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो हम एक्चुअली वो पॉइंट पे प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, और इस केस में कॉन्केव के केस में इट सीम्स लाइक आ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो ये तो हम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए क्या करते हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस होता है और उसकी इमेज जो है वो
बनती है कहाँ पर, जिस पॉइंट पर भी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पर भी उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्चुअल इमेज बन रही है, एक्चुअली दीज लाइन्स आर मीटिंग, दीज लाइट रेज आर मीटिंग एट दैट पॉइंट, तो यहाँ तो रियल बन जाएगी। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, पर जो इमेज बन रही है, इट सीम्स लाइक द इमेज इज फॉर्मिंग एट दैट पॉइंट F2। तो इस केस में जो पॉइंट होगा, या इस केस में जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहली है, द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। फिर है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू both the faces of the lens. The next is, the first principal focus of a lens is a point on its principal axis at which object is placed such that image of that object obtained at infinity. Okay. Next is, the second principal focus of a lens is a point on its principal axis at which image of a object formed when object is situated at infinity. Next is, lens has two foci. The two foci of a lens are at equal distances from the optical center, one on either side of the lens. Okay. And next is, the focal length of a lens is the distance between optical center and principal focus of the lens. समझ में आ गया होगा आपको। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ओके, नाउ लेट्स सी रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सो वेरी इजी रूल्स, यू कैन सी हियर वन बाय वन। सो रूल वन इज, a light ray traveling parallel to principal axis after refraction from convex lens pass through second focus of a convex lens. Okay, so you can see here, so you can see here for convex lens, this is a convex lens, this is a principal axis। तो लाइट रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर फोकस हो जाती है, कहाँ से पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये लिखा है पास थ्रू सेकंड फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सेकंड फोकस है, अभी हमने स्टडी करा है। तो जो लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, सेकंड फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्केव के लिए देखते हैं, अ लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्केव लेंस इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेकंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो दीज आर द रेज, दिख रहा है आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। नाउ कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी रेस रिफ्रैक्शन के बाद। पर अगर आप इनको बैकवर्ड बढ़ाओगे, पीछे की तरफ आप बढ़ाओगे, देन दे सीम्स टू कट ईच अदर एट अ पॉइंट F2। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट अपीयर्स टू पास थ्रू सेकंड फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो ये फर्स्ट रूल है कि रे जब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स लेंस में तो क्या होंगी, दे पास थ्रू द सेकंड फोकस, और कॉन्केव लेंस में दे सीम्स टू पास थ्रू सेकंड फोकस। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, सेकंड रूल। सो दिस इज अ सेकंड रूल। तो इसमें क्या है, लाइट रे इंसिडेंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेस अनडेविएटेड। तो सिंपल रूल है, अगर कोई लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडेविएटेड ही आगे चली जाएगी। इस तरह से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनडेविएटेड वो आगे पास हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ सेकेंड रूल। नाउ सी अ थर्ड रूल। सो दिस इज अ थर्ड रूल। So a light ray passing through first focus of a convex lens after refraction goes parallel to principal axis। तो convex lens के केस में ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है, दिख रहा है आपको, दे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव के केस में क्या होगा, अ लाइट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
So you can see here these are the rays, and these rays are these incident light rays are directed, they seems to directed towards this first principal focus. दिख रहा है आपको? They seems to directed towards the first principal focus. और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? They goes after refraction they goes parallel to principal axis. ठीक है? A light is directed towards first focus of concave lens after refraction goes parallel to principal axis. देख सकते हैं आप, ये इंसिडेंट रे हैं, ये इंसिडेंट रे, they seems to directed towards the फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. ठीक है? और रिफ्लेक्शन के बाद ही कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है. ठीक है? सो these are the three rules. So I hope you understand all the topics. Okay, so thank you for watching this, and if you find any problem you can ask to me, you can message to me. Okay, thank you.